XYZ पेशेंट का नाम है, 42 years of age, married for 10 years, para 2. She comes and complains to you in the clinic. For 2 years, she is having something coming down. And also difficulty in initiating maturation. ये केस पे दवा कर रहे थे, आप बोलिए जी, आप शायद अभी भी. Yes, first of all, I will introduce myself to the patient and will confirm the data provided to me belong to that patient. Then I need extra information regarding history, clinical examination, and investigation. On history, I will ask about the onset, duration, rate of progression, whether it is of something coming out of vagina, whether it is reducible or irreducible. And then any associated symptoms like vaginal bleeding, vaginal discharge, backache, is she sexually active, then dyspareunia and postcoital bleeding, difficulty in as she is having difficulty in maturation, then then its onset and duration, any other urinary complaint apart from this problem, and then any bowel problem, then history of smoking, heavy weight lifting, chronic cough or constipation. Does she feel any mass in the abdomen? Then any treatment taken so far and what was the effect? History of breast insertion and its outcome. Then any significant medical history to rule out any comorb, and any drug history or drug allergy. Regarding her parity, I would like to know about her mode of delivery. If it is vaginal delivery, then duration of labor, difficult labor, instrumental vaginal delivery, and manual removal of placenta, weight of the baby, and then our future desire for fertility. Good. On examination, I would like to know about her BMI and vitals, and thyroid and breast examination and chest examination to rule out any cardiovascular and respiratory problem, and then abdominal examination. In abdominal examination, I will note any distension, any mass in the lower abdomen, and any ascites present. Then I would and then on local examination, I will ask the patient whether she has empty bladder or full bladder, because for demonstration of stress incontinence, I need her full bladder. Then I will examine her first in dorsal position to look for the degree of descent, any ulcer present. If ulcer is present, then site, size, margins, surrounding area, and a base of the ulcer, whether covered with pus, necrotic tissue, granulation tissue, or bleeds to touch. Then I would any pigmentation or granulation tissue, whether the uterus is lying outside the prolapse, and I would hold the prolapse and approximate my finger to note the extent of fundus in between my fingers. Then I will make the seams position of the patient and will insert the seam speculum to note any anatomical defect in anterior or posterior vaginal wall. And after my examination is complete, I will ask the patient to pull the bladder so that I can demonstrate stress incontinence. Good. Very good. Then I need investigations. Apart from routine investigations, particularly urine for any pus and microscopy and culture, I would I would like to know ultrasound findings for uterine size,
its endometrial thickness or regularity, myometrial ectotexture, any adnexal pathology or evidence of ascites. Then I will know about the pap smear if she has ever done. Um, sir, Go on, you're doing well. Go on, go on. कोई then इन्वेस्टिगेशन कर लोगे ना, कोई स्पेशल है तो बता दो, नहीं तो आगे चलो। सर वो रूटीन हो गई और अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद सर अभी तो, और इसके बाद तो कोई मुझे वो नहीं मिल रही। फिर देन आई विल काउंसल द पेशेंट रिगार्डिंग द डायग्नोसिस that her uterus is not in normal position, but I will reassure the patient that it is not a life-threatening position, but because she has symptoms, so it needs a treatment. So I will discuss the treatment options with pros and cons. I will advise her lifestyle modification if she is obese. I will advise weight reduction through diet and exercise. I will advise her not to smoke if she is a smoker, and I will treat her chronic constipation or COPD if present. And I will tell her pelvic floor muscle training. These are Kegel exercises. She has to do it for at least 3 months, 3 times a day, or and then I will ask her about her future fertility and whether she want to retain her uterus for menstruation. And then I will discuss pastry treatment if she has ever taken. If she has taken pastry and it has been failed, then I will tell her that it can be used temporarily until she is fit for surgery. And then I will tell her the surgical options that can be uterus retaining surgery or definitive treatment, that is vaginal hysterectomy. If she needs uterus retaining surgery, then it can be done abdominally as well as vaginally. Abdominal procedure is hysterosacropexy, where the cervix is fixed to anterior longitudinal ligament of first sacral promontory with the help of a mesh. I will tell her that it can be done open or laparoscopic by laparoscopy, and I will tell her the complications and its pros and cons, and success rate is 90 to 95%. Then I will tell her. आपके 10 मिनट पूरे हो गए, पूरे हो गए। जी सर। आपके मैं दे दूंगा नंबर, 6 नंबर वाला पास होता है, आपको 5+ दे दूंगा, क्लियर पास नहीं करूंगा। हालांकि आपने बड़ी सेंसिबल टू द पॉइंट चीजें कही हैं और बताया है मुझे, फिर भी आप एग्जैक्टली उस पास जोन में नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप सीख जाएंगे। आपका नॉलेज ठीक ठाक है, आपने कहा भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं बता देता हूँ, छोटी छोटी चीजें आपने मिस की, मतलब फैमिली हिस्ट्री नहीं कही आपने हिस्ट्री में। यस सर, वो मुझे बाद में हुआ था, मैंने तो हो गया ना। फिर जब आपने कहा ना कि मैं बहुत अच्छा कहा कि ब्लैडर एम्प्टी है कि फुल है, फिर साथ ही कहना था अगर एम्प्टी है तो मैं उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करूंगी, अगर फुल है तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। ये अल्फाज इस तरह से नहीं बोले आपने। ठीक है। आपने पूछा ब्लैडर, बहुत अच्छा किया कि ब्लैडर एम्प्टी है कि फुल है, फिर दोनों चीजें बोलनी थी। If the bladder is full, I'll examine her for stress incontinence. If bladder is empty, I'll carry on my pelvic examination. ऐसे नहीं बोला। दूसरा, आपने पेप स्मीयर लिया नहीं उसका। इम्तिहान में तो पेप स्मीयर हर एक का लेना है, क्योंकि 99.9% किसी का पेप स्मीयर नहीं हुआ होगा। जी सर। तो इसलिए आपने ये नहीं कहा I'll take पेप स्मीयर। ठीक है। तो जो जहाँ पे मैंने आपको पूरे 6 नंबर नहीं दिए, ये इन
बातों पे तो मैंने आपको फिर भी पास कर देना था, लेकिन जो आपने अल्फाज नहीं बोले कि आफ्टर एग्जामिनेशन आई विल असेस द डिग्री ऑफ प्रोलैप्स देन अकॉर्डिंगली एडवाइज हर, ये अल्फाज नहीं बोले आपने। ठीक है सर। आपने सीधा कह दिया कि मैं एग्जामिन करूंगी, फिर उसको बताऊंगी तुम्हें प्रोलैप्स है, और फिर वो एब्डोमिनल करवाना चाहती है, एब्डोमिनल करवा ले, ये है वो है, ठीक है टैक्सी वगैरह की तरफ आप चली गई। लेकिन आपको ये यहाँ पे ये कहना है, जब आपने असेस कर लिया, फर्दर मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ प्रोलैप्स। ठीक है ये आपके अल्फाज नहीं थे, ठीक है सर। क्योंकि अगर वो माइनर डिग्री प्रोलैप्स है, फर्स्ट डिग्री ही है, then it's not necessary that we should do. फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं, as this is a case of first degree utero vaginal prolapse, I'll explain to her, and वो फिर pelvic floor exercises कर ले, she can be treated conservatively. ठीक है सर। But if it is second, third, or fourth degree prolapse, then she need a surgical treatment possibly. ठीक है। ये अल्फाज आपके नहीं थे, और आपने जनरली बोलती गई कि मैं एग्जामिनेशन के बाद उसको एडवाइस कर दूं कि स्मोकिंग बंद कर दो, वजन कम करो, और ये करो वो करो। ये तो इनकी एप्लीकेशन है डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ प्रोलैप्स। अगर उसको थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है, वो एक्सरसाइज डजंट डू एनीथिंग। जी सर। स्मोकिंग ठीक है, इज ऑलवेज गुड टू एडवाइज स्टॉप स्मोकिंग, लेकिन उसमें एक्सरसाइज भी काम नहीं करती। जी सर। तो आपका यहाँ पे डिवीजन ऑफ योर मैनेजमेंट होना चाहिए था, फर्दर मैनेजमेंट आफ्टर एग्जामिनेशन, और इन्वेस्टिगेशन आपने जनरली ठीक ही कह दी तकरीबन, तो पैप्समियर यहाँ पे ऐड किया था। तो आपने कह रहा आफ्टर एग्जामिनेशन the further management depends upon the degree of prolapse. ठीक है। ये अल्फाज नहीं थे आपके। जी सर। और फिर हम आप सर्जिकल ट्रीटमेंट जो किताब में लिखा हुआ है आपने वो बता दिया। आप सब बोले हैं, पता नहीं 60-70 आप बैठी होंगी, आपने अपने डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग क्या ये होते देखा है जो आपने बोला? अ पेशेंट हु इज 42 years of age, पैरा 2, क्या उसका हम एब्डोमिनल पैक्सी करते हैं? उसकी नहीं करते। सर वो मानचेस्टर भी बताने लगी थी, बस वो टाइम अब वही तो बात है, जो आपने देखा है वो कीजिए, वो बोलिए, वो इतना गलत नहीं होगा। ठीक है सर। जो जो आपके एग्जामिनर है उसके वार्ड में भी यही हो रहा है जो आप कहने वाली थी। ठीक है सर। तो उसके वार्ड में भी एब्डोमिनल पैक्सी नहीं हो रही। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप सबके लिए मैसेज, आप जहाँ पे प्रोलैप्स की मैनेजमेंट की बात आती है, किताब की बात हट के जो आप देख रहे हैं हो रहा है, उसको नंबर 1 बोलिए, उसकी जस्टिफिकेशन है, समझिए। सो फर्दर मैनेजमेंट विल डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ प्रोलैप्स। जनरली स्पीकिंग, ये जो कह रही है समथिंग कमिंग आउट, ये थर्ड और फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स होगा, कम से कम सेकंड डिग्री होगा, उसको तभी महसूस होता है। तो एज 42, मेरे यहाँ पे कहना था, बिकॉज शी इज 42 years old and she has got 2 babies, और आपने ठीक बोला, वो ठीक बोला, but she has no further plans to have babies, so I'll advise her vaginal hysterectomy and repair. जो ये सही बात है, and repair anterior corpora fecorpoperineal raphe। और उसमें अगर वो एग्जामिनर आगे चल दे आपको, आप कह दीजिए I'll fix the vault with the uterosacral ligaments। वो फिर that will shut her up कि वो आपसे एंट्रोसील की या वॉल्ट कोलैप्स की बात नहीं करेगी। सर, एक मिनट मुझे आपका मैं सुनता हूँ, मैं ये फिक्रा कंप्लीट करने। तो इन एग्जामिनेशन
age 42, para 2, family complete, your first line of management would be vaginisectomy and repair, and taking precautions for vault collapse by tying vault to the uterosacral ligaments. जी मोहतरम बोलिए, अब आप कुछ कहने वाली थी। सर मतलब हम कट ऑफ क्या देंगे कि लाइक 42 हम डायरेक्ट वेजाइनल हिस्टेक्टमी ही बोलेंगे। मैं ये कहूंगा फैमिली कंप्लीट 42 वाली भी कह सकती है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने तो और बच्चे भी पैदा कर। तो ये पहला, I will inquire about her future plans for fertility, ये फिक्रा बोलना है आप। If she has completed her family, then even 40 से नीचे फिर ये कह सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। If her family is complete, I'll discuss with her possibility of doing hysterectomy. क्योंकि आप सबको पता है हमारे पेशेंट्स, young patients, they don't want to part with their uterus. तो लेकिन आपने फिक्रा 38 में उसने फैमिली कंप्लीट कर ली है, अगर कंप्लीट कर ली है, then I'll discuss with her possibility of doing hysterectomy. No, sir, my question is this: if a patient 38 years and she has completed her family, what will be our option for that? If she has, we have the option is for, as a surgeon, your number one option is vaginisectomy and repair. At 38 years, sir. तो वही तो ना एग्जामिनर कहेगी, यही जो आपने कहा है वो कहेगी। 38 पे कहे मैडम, if the family is complete, she does not need this uterus, and vaginisectomy repair gives better results than Manchester repair or anything. और दूसरा, we are saving her from future CA cervix, CA endometrium, वगैरह। ये जवाब दीजिए। तो आज का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने उठाया। आपने इम्तिहान में ये कहना है फॉर ए यंगर पेशेंट, 40 का भी, 42 का भी, I'll inquire whether her family is complete or not. If she says the family is complete, then surgery of choice or operation of choice is vaginisectomy and repair, taking care for the vault. और अगर वो कहती है कि I don't want to part with my uterus, मेरी फैमिली कंप्लीट है लेकिन मैं हिस्टेक्टमी नहीं चाहती, ये I'll respect her wish, then I'll advise her Manchester repair. और मैनचेस्टर रिपेयर के स्टेप्स में फिर इंक्लूड कीजिए DNC, इंक्लूड कीजिए। आप तो ये सवाल पूछा जा रहा है, डॉक्टर साहब का नाम क्या है, डॉक्टर शायदा, अब आप मैनचेस्टर रिपेयर के स्टेप्स बोलिए। सर उसमें सर स्टेप्स में है कि एक एम्पुटेशन ऑफ द सर्विक्स। आप फेल हो सर असल में मैंने तैयार नहीं किया, वो कार्डिनल आप बुरी पहले तरह सर फेल हो गए, देखा सर रिवाइज नहीं किया ना, वो भूल गए सर। आज मेरी प्रेपरेशन व्हाट रिवाइज नॉनसेंस। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के स्टेप्स पूछे जाए, आफ्टर एनेस्थीसिया, एसेप्टिक मेजर्स, EUA, ठीक है जी सर, ये हर प्रोसीजर में बोलने हैं। ठीक है सर। कोई भी सर्जरी कही जाए आपसे, फ्रांस सर्जरी के स्टेप्स बोलिए, स्टेप्स आफ्टर एनेस्थीसिया, एसेप्टिक मेजर्स एंड EUA, फिर आएगा वो सर कट करना है, ये करना है, वो करना है। आप फिर बोलिए, आपने मुझे अपसेट कर दिया, सॉरी सर। ये आप सबके लिए इम्तिहान में आपसे किसी ऑपरेशन के स्टेप्स पूछे जाए, डोंट स्टार्ट के मैं वर्टिकल इंसिजन से लेप्रोटमी करूंगी और फिर ये करूंगी वो करूंगी, नो, आप फिर चलो फिर बोलो। फरहान, क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, डॉक्टर शाहिदा। हाँ जी,
फिर बोलो स्टेप्स ऑफ मैनचेस्टर रिपेयर। जी सर, after general anesthesia and aseptic measure, I will do examination under anesthesia and to assess the size of the uterus and any adnexal mass नहीं बस of वो my ये कहने findings. की जरूरत नहीं, ठीक है सर, अब टाइम ना जाए, बस या I'll do I- EUA. ठीक है सर. Hmm. Then I will hold the anterior lip of the cervix with valcellum and give circular incision around the cervix and extend. आप फेल हो गई हैं दोबारा 2 अटेम्प्ट चली गई हैं आपकी, तीसरे के बाद थ्योरी पे वापस जाएंगी आप। कोई है वॉलंटियर जो मैनचेस्टर पे के स्टेप्स बोले? बोलिए ना, कोई तो बोले। अक्सा नाम की है, अक्सा बोलो तुम। क्यों इतने अपसेट हो जाते हैं मेरी बात पे? सारे चुप कर गए। कोई बोलो, मैं आगे नहीं चलता जब तक वो बोलता नहीं। सर EUA के बाद डायग्नोस्टिक DNC करेंगे। हाँ, ये तो बोला नहीं है। जी सर, भूल गई, डायग्नोस्टिक DNC वो भूल कैसे जाते हैं आप? स्टेप्स ऑफ मैनचेस्टर रिपेयर जो आपने सैकड़ों होती देखी। EUA, जी सर, EUA फिर DNC। डायग्नोस्टिक, जी सर, EUA DNC, then amputation of the cervix और फिर cardinal ligament, cardinal plication of anterior cardinal ligament in front of the amputated cervix और नहीं नहीं नहीं, कोई और बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हसन अली, तुम जी जी, लड़की हो कि लड़का हो? हसन अली, मैं लड़की हूँ डॉक्टर। तो क्या नाम तो आ रहा है तुम्हारा, सैयद हसन अली। जी डॉक्टर, सबसे पहले एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया, देन DNC एंड देन जो है वो इन्वर्टेड टी शेप्ड इंसिजन हम देते हैं ऑन द एंटीरियर वजाइनल वॉल, डाइसेक्टेड करते हैं फेशिया को और ब्लडर पुश कर देते हैं अपवर्ड, देन पाउच ऑफ डगलस ओपन करते हैं और शॉर्टनिंग एंड कोएक्टेशन करते हैं कार्डिनल लिगामेंट की, उसको क्लैम कट और लाइगेट करते हैं एंड देन हम शॉर्ट करते हैं सर्विक्स को जस्ट 3 सेंटीमीटर जो है बिहाइंड छोड़ते हैं और जो उसका पेडिकल था उसको इन फ्रंट ऑफ द सर्विक्स जो है हम स्टिच कर देते हैं। एंटीरियरली हम फादर गिल स्टिचर लेते हैं, फादर गिल सुचर लेते हैं और पोस्टीरियरली स्टम्प डर्फ सुचर्स लेते हैं। वेरी और गुड। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये कह दिए इस सोचे से पहले, फिर एंटीरियर कॉर्पोरेट करते हैं, फिर कॉर्पोरेनियोग्राफी करते हैं, बस फिर जी जी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और कॉर्पोरेट। फिर फोलिज कैथेटर डाल के। तो हम सर्वाइकल इलोंगेशन की कर रहे हैं ना, ये तो हम नहीं, प्रोलैप्स मैनचेस्टर में इलोंगेशन है या नहीं है? स्टेप्स यही हैं जो इन्होंने बोले। नहीं सर, ये स्टेप्स हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये जो कर रहे हैं मैनचेस्टर रिपेयर, इट इज फॉर सर्वाइकल इलोंगेशन, ये यूट्राइन प्रोलैप्स की मैनेजमेंट तो नहीं है? सुन लीजिए, ये इसलिए है कि मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस इज ये मैकनरॉट लिगामेंट्स, लैटरल लिगामेंट्स। सर एक पेशेंट है 42 ईयर ओल्ड, उसने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है, अब हम उसको ऑप्शंस दे रहे हैं फॉर एक तो है वजाइनल हिस्टेक्टमी, और अगर उसने अभी फैमिली कंप्लीट नहीं की तो सर्वाइकल इलोंगेशन के लिए हम मैनचेस्टर कहते हैं ना जी। वो तो उन्होंने सही बोला था कि आपने पीछे जो नॉर्मल लेंथ है वो छोड़नी है, 3 सेंटीमीटर उन्होंने बोला था, तो वो छोड़नी है। तो मैं दोहरा देता हूँ, हमने इस पे बहुत टाइम दिया कर दिया, बहुत टाइम दिया। आपने मैनचेस्टर रिपेयर के स्टेप्स इस तरह से बोले, एनेस्थीसिया, एसेप्टिक मेजर्स, और उसमें शामिल कर लीजिए हर गायनिक लेप्रोटमी में या कैथेटराइजेशन ऑफ द ब्लैडर, कैथेटराइजेशन ऑफ द ब्लैडर, और वो ताकि ब्लैडर एम्प्टी रहे।
और उसके बाद DNC और फिर स्टेप्स ही बोलते जाइए, वजह ना बोलिए, unless examiner asks you why DNC. So DNC, then shortening of the supporting ligaments, lateral ligament and uterosacral ligament. फिर amputation of the cervix, then वो जो उन्होंने बोला था वो उसका नाम है Fothergill stitch, वो बोल दीजिए, या कार्डिनल लिगामेंट्स को सामने लाके स्टिच करना सर्विक्स के, ये बोलिए। तो उसका मतलब है शॉर्टनिंग ऑफ द लिगामेंट्स, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बेसिकली मेन सपोर्ट इज कार्डिनल लिगामेंट्स। तो वो, और फिर उसके बाद देन टाइंग ऑफ द यूट्राइन आर्टरीज, अगर वजाइनोस्टेक्टमी कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो सामने लिगामेंट्स को बांध के, देन एंटीरियर कॉर्पोरेफी एंड कॉर्पोपेरिनियोरेफी, बस इस तरह से बोल दीजिए। मैं दोहराता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर पेशेंट अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाह रही है तो उसको मैनचेस्टर रिपेयर के बजाय जो स्लिंग प्रोसीजर करते हैं सर, उसका ऑप्शन नहीं देंगे? जी मैंने एक मिनट, हेलो, हाँ जी, नहीं करो, मैं लेक्चर ले रहे हैं तो तेरे अंत में फारग हो जाए। जी नहीं, मैंने अभी आपसे बोला, ये सारी बातें जो आप कह रही हैं स्लिंग, एक मिनट, वो सारे किताब में नंबर 1, 2 लिखे हुए हैं, लेकिन मैं बार कहता हूँ आपसे, आप जहाँ पे ट्रेन हुए हैं, जो वहां पे हो रहा था वो बोलिए, वो आपका प्रोफेसर गलत नहीं कर रहा था। अब आप मुझे ये बताइए, जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि आपने कितने मरीज की ये स्लिंग ऑपरेशन एब्डोमिनली होते देखे हैं फॉर यूट्रो वेजाइनल प्रोलैप्स, और कितने मरीजों की वेजाइनोस्टेक्टमी या मैनचेस्टर होते देखा है? आप बता दीजिए मुझे। ये सर क्या मैंने प्रोसीजर और ये दोनों देखे हैं अपनी ट्रेनिंग में, बल्कि असिस्ट भी कराया है स्लिंग, लेकिन ये मैनचेस्टर रिपेयर मैंने नहीं देखा। एक मिनट, देखने की बात और है, 1-2 प्रोसीजर है। कॉमनली जनरली आपके वार्ड में क्या मैनचेस्टर रिपेयर होती थी मरीजों की, कि ये स्लिंग ऑपरेशन होता था? सर मैनचेस्टर रिपेयर होती थी और एपी रिपेयर मतलब बस होती थी। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप नंबर 1 मैनचेस्टर बोलिए या वेजाइनोस्टेक्टमी बोलिए, उसके बाद आइए वो स्लिंग ऑपरेशंस, बोल्ट की फिक्सेशन तो द प्रीसेक्रल वर्टिब्रा या स्पाइन, क्या स्पाइनल सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, फिक्सेशन, फिर आइए उस पे, आपको आना चाहिए, वो आना चाहिए। तो आज के इस डिस्कशन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपने एग्जाम में ये सर्जिकल ट्रीटमेंट बोलना है पहले जो आपने देखा हुआ है, या पॉसिबली आपने किया भी हो, तो वो अगर उसके बाद और क्या कर सकते हो, फिर ये सस्पेंशन के या स्लिंग ऑपरेशन के नाम लेने हैं आपने, उसकी डिटेल नहीं बोलनी, क्योंकि आपने बहुत कम देखे हैं, बहुत कम किए हैं, तो उसकी डिटेल बोलते हुए आप थोड़ा सा फंबल कर जाएंगी, इधर उधर हो जाएगी बात, तो एग्जामिनर को अच्छी नहीं लगेगी वो। तो आपने बोलना है कि इस पेशेंट की लेट्स से फैमिली कंप्लीट नहीं है, I'll do vaginisectomy, I'll do Manchester, और अगर फैमिली कंप्लीट है I'll do vaginisectomy and repair। तो और उसके बाद एग्जामिनर आपके चेहरे की तरफ देखेगी, आंखों में आंखें डालेगी, उसके पूछे बगैर बोलना है अदर ऑपरेशंस आर एब्डोमिनल, ओपन लेप्रोटमी से या लेप्रोस्कोपी से, दैट इज फिक्सेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वजाइना। अगर आप यूट्रस को सेव करना चाहते हैं तो टॉप ऑफ द वजाइना विद द प्री-सेक्रल लिगामेंट्स, और फिर obliteration of the pouch of Douglas by tying uterosacral ligaments together, ये बोलना है फिर।
पहले नहीं बोलना, और फिर आगे जो भी होगा वो डिस्कशन हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये थोड़ा सा हमेशा ये क्वेरी रहती थी कि जो मैनचेस्टर रिपेयर में हम डीएनसी करते हैं, लेकिन हाँ। जो अदर यूट्रस प्रिजर्विंग सर्जरीज हैं उसमें नहीं करते, उसकी क्या रीजन है? वैसे वो चुके ये इसकी मैनचेस्टर की डीएनसी तो इट इज एडिंग ओनली 2 मिनट्स। जी सर, वो विजाइनल रूट है, और पहले हम विजाइनल रूट से कर रहे हैं। सारा कुछ तैयार है, एसेप्टिक मेजर्स है, वो उसको एसेप्टिक मेजर में तो उसकी शीट्स पड़ी हुई है, लिथोटमी शीट जो होती है वो स्पेशल सी होती है, टांगों पर पेट पे एकदम आ जाती है, सब कुछ पड़ा है। इट एड्स ओनली 2 मिनट्स, राइट। दूसरे केस में अगर आप ये डीएनसी नहीं कर रहे हैं, यूट्रस को प्रिजर्व कर रहे हैं, अच्छा हुआ आपने इस बात पूछ लिया। आपने उसके इन्वेस्टिगेशन में बोलना है कि मैं उसका अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी स्पेशली फॉर एंडोमेट्रियल थिकनेस, ये अल्फाज बोल। जी सर, वो मैंने जब किया था ना, उसमें इन्वेस्टिगेशंस मांगी थी, तब हाँ, यूट्रस को मैं बताया था मैंने, हाँ जी, एंडोमेट्रियल थिकनेस एंड रेगुलरिटी। तो फिर आप पास हो गए। सर वो मैंने बताया था आपको, और जब मैं कर लेकिन कोई और वजह हुई होगी, ये तो बड़ा प्लस पॉइंट था। ठीक हो गया। सर वो, जी सर। अच्छा सर, वो एक थोड़ा सा ये भी पूछना था कि जैसे अब हम एक मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जैसे हाँ, हम एक फॉर्मुलेट करते हैं मैनेजमेंट प्लान, तो हम पहले सर सिर्फ नाम बता दें कि हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, फिर पैसरी ट्रीटमेंट होगी, फिर सर्जिकल में जो ऑप्शंस हैं वो मैनचेस्टर रिपेयर है, फिर सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन, और फिर हाँ, सैक्रोहिस्टेरोप्लेक्सी, ये बिल्कुल इस तरह से बोल दें सर पहले? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। You will get extra mark. You have saved time for further discussion. सही सर। वो एग्जामिनर की ख्वाहिश होगी आप सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ कैसे फिक्स करेंगे, फिर उसकी डिटेल तब बोलनी, पहले नहीं बोलनी। पहले जैसे आपने बोला उस तरह बोल। जी सर, वो मैंने सर आज आपको पहली दफा प्रेजेंट किया, थोड़ा सा मुझे सर डर लग रहा था, इस वजह से शायद मैं स्किप कर गई हूँ कुछ चीजें, तो अब सर मेरी झिझक उतर गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। डन वेल। चले जी, अब ये तो हो गया। अगला कोई और वॉलंटियर है? वो इमराना मियाँ वाली नहीं आई आज? पिछली दफा इतनी नाराज हो रही थी कि मेरी प्रेजेंटेशन में सवाल पूछ रहे हैं, प्रेजेंटेशन खराब हो गई। ऐसा ना किया करें आप। सर ये एक बार स्टेप्स तो रिपीट कर दें प्लीज, मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर रिपेयर के स्टेप्स हैं: एनेस्थीसिया, एसेप्टिक मेजर्स, EUA, emptying of the bladder, then जो भी हमने ये बोले हैं सारे, डीएनसी के बाद वो रॉकेट शेप इंसिजन देते हैं हम यूजुअली। आफ्टर रॉकेट शेप इंसिजन around the cervix, ligate, cardinal ligaments, uterosacral ligaments, amputate cervix, and tie the ligaments in front of cervix, do anterior repair, corpoperineography, and indwelling catheter postoperatively for 24 to 48 hours. Full stop. Challenge. Who is the volunteer next? वो इमराना तो आई नहीं। बोलिए, कोई और बोलो, नहीं तो मैं दोबारा शायद आपको ले लूंगा। आखिर वो निश्चयनियन। जी सर, वो फिर ट्राई करती हूँ सर, एक और दे दें सिनेरियो। चलो जी, और कोई नहीं बोलता तो शायद होता। XYZ, age 87, third degree utero vaginal prolapse for 8 years, और मेडिकल डिजीज है, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। चलिए बोलिए। First of all, I will introduce myself to the patient and will confirm that data provided to me belonging to that patient.
Then I will need extra information regarding history, clinical examination to make my provisional diagnosis and certain and then relevant investigation. ये भी कोई बोल रहा है उसको बंद करो ना, माइक को बंद करो जी. History and clinical examination to reach the to reach the probable diagnosis and relevant investigation to make to formulate a management plan. Then in history, I will ask about the onset, duration, rate of progression of prolapse, whether it is reducible or irreducible, any history of vaginal discharge or vaginal bleeding, uh, uh, and any urinary or bowel complaints. सर इसमें is she sexually active पूछे हैं? जी जी वो बोलते जाए आप ठीक बोल रहे हैं. Is she sexually active and any postcoital bleeding? And then history of chronic cough and constipation, history of smoking, history of heavy weight lifting, and history of and does she feel any mass in the lower abdomen? Then family history of similar complaints and family history of malignancy of the breast, uterus, ovary, or colon cancer. Then as she is having a coronary artery disease, I would like to ask about its onset, duration, and what treatment has she taken, and any other significant medical history apart from it. History of any surgery, is she taking any drug on regular basis, and any drug allergy, any treatment taken up till now, particularly PASI treatment and its outcome. Was history of any admission in the hospital, particularly for vaginal packing, and has she been discussed about the treatment, regarding her treatment options. Now then I will go for examination for BMI, her vitals, thyroid and breast examination, and chest examination, particularly her cardiovascular system, and then abdominal examination for any distension, any mass in the lower abdomen, or percussion and fluid feel for any ascites, and then local examination with her verbal consent, and ask the patient whether she has she has full bladder or empty bladder. Then if her bladder is full, then I will demonstrate stress incontinence. If her bladder is empty, then first I will do examination, and later on I will demonstrate stress incontinence with full bladder. On examination in dorsal position, I would एक मिनट तो वो how will you demonstrate stress incontinence in the bladder is full? How will you? Sir, I will patient will be in dorsal position. I will apart apart her labias and ask the patient to cough. If there is urine, then यही that's तो हो not, गया or ना. in standing, or then you confirm it in standing position. ना That is only. गल मुक गई है, गल मुक गई है. इसका ठीक है मतलब सर. आपने कभी किया ही नहीं है. ठीक है सर. इसका मतलब आप फेल है. तो अगर एग्जामिनर को ये लगे तो है कीता ही नहीं कभी, तो फिर वो एग्जामिनर The prolapse should be put inside. हाँ, Finger वेरी put गुड. inside. आपने ये नहीं बोला आई रिड्यूस, क्योंकि मैंने बोला हुआ है हाँ, reduce the prolapse. ठीक है सर. थर्ड डिग्री मींस इट इज लाइंग आउटसाइड. आपने उसको रिड्यूस ही नहीं किया. ठीक है सर. और आप फेल हो गए. इसका मतलब आपने कभी किया ही नहीं. नहीं सर, वो रिड्यूस वाला वो बताना था पहले. तो फिर रिड्यूस करके और फिर इस तरह से आप लोग फंबल करते हो और फिर समझ नहीं आती कैसे ये कैसे हो गया. जैसे पिछली दवा के दिन ने मुझे बताया कि यूट्रो वाजिनल प्रोलैप्स शी डिड वेरी वेल, लेकिन एग्जामिनेशन कसको से कर दिया. फिर उनको समझ ही ना आई कि मैं फेल कैसे हो. सर मैं दोबारा बताती हूँ. if her bladder is full, नहीं चलो then bladder is full, so I'll और फिर सर I will reduce the prolapse and demonstrate stress incontinence. If her bladder is empty, then I will straightforward go for
local examination first Okay. in dorsal position, and I to assess the degree of prolapse, vaginal edema, any congestion or pigmentation or keratinization, presence or absence of ulcer. If ulcer is present, then its site, size, margins, surrounding skin, and base, whether covered with pus or granulation tissue or necrotic tissue, and whether it bleeds to touch. Then I sir वो जो था वो hold the prolapse and approximate my fingers to hold to assess whether fundus is present. और उसको देखिए सर आप किस जो तरह से बताना है? बता भी दीजिए तो कोई फर्क नहीं खास, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट तो एक ही है। ठीक है सर। आगे चलो। Then I How will how will then you I manage will it? Time खत्म होता जा रहा है। जी sir, I will counsel the patient regarding the diagnosis that her uterus is not in normal position. However, I will reassure the patient that it is not a life-threatening position. And सर इसमें आपने symptoms तो नहीं बताया कि कोई उसको symptoms हैं साथ या नहीं है. If is asymptomatic तो फिर नहीं, there वो is जो the option of no ये treatment. उसकी कंप्लेंट है कि जिस्म बाहर आ रहा है, ज़ाहिर 3rd डिग्री है तो वो हो गई ना बाहर, सिम्टोमेटिक ही होगा। ठीक है सर। But अगर as up to 2nd degree you can say that, लेकिन 3rd degree तो definitely the prolapse is lying outside, तो ये सिम्टम है। अक्सर यही सिम्टम होती है कि जिस्म बाहर आता है। ठीक है सर। But चलो। so as she is having a medical disease, so I will involve physician so that her disease can be treated, and she must have anesthetic review and उसका सिंपल कर लो ना। जी If सर। she is having a medical disease, I'll consult cardiologist whether she is fit for surgical treatment. Full stop. ठीक है, Time. involve cardiologist, ठीक है सर। Involve cardiologist for medical fitness. Then I will discuss the options that conservative treatment, pastry treatment, and surgery. सुनो ना, तुमने उस तरह नहीं बोला जिस तरह मैं चाहूंगा। जी सर। I will consult cardiologist for her Further management, वो तो degree of suitability prolapse and fitness for surgical treatment. ये करके, if she is fit for surgical treatment, then I'll discuss with her the options. ठीक हो गया। अगर वो surgically fit नहीं है, फिर options फर्क है। Sir, her further management will depend upon her medical fitness. Then I will discuss the options of either conservative management or pastry treatment or surgery. If she is obese, then I will advise her lifestyle modification for weight reduction. वो सारा कुछ सर वो करके सर जो फिर पैस्ट्री का ट्रीटमेंट उसके प्रोस एंड कॉन्स बताने हैं, और फिर सर्जरी में सर उसका जो है कि इफ शी इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव देन काल्पोक्लेसिस एडवाइस करूंगी, क्योंकि इट्स इजी, सिंपल एंड कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया एंड और उसमें सर ली फोर्थ प्रोसीजर होगा। नहीं ऐसा नहीं। जी सर। ऐसा ना, मैं शायद तुम्हें पास कर दूं, लेकिन आई वोंट बी वेरी हैप्पी विद यू, वेरी हैप्पी विद यू। जब आपने कह दिया कि मैंने उसकी कार्डियोलॉजिस्ट से असेसमेंट करवानी है whether she is fit for surgery, when the surgeon says she is fit for surgery, फिर आप क्यों स्किप करते हो सारा कुछ? ठीक हो गया सर। फिर सारा कुछ क्यों स्किप करते हो? तो ना करो इस तरह से। If she is fit for surgery, I'll advise her vaginectomy and repair. ठीक हो गया सर। Fit for surgery and vaginal hysterectomy. अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट कहता है she is not fit for surgery, फिर आप जाइए पैस्ट्री पे और वो वगैरह वगैरह। और ये कॉर्पोक्लेसिस का लफ्ज आप रिजर्व में रखें। तो एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, आप कहते हैं vaginectomy कि आप उसके कॉर्पोक्लेसिस नहीं कर सकते अंडर लोकल, या फिर आप बोलिए कि जी it depends upon the fitness of the patient. If the cardiologist thinks she is fit, I'll do this.
This is the correct thing. Colpocholysis is not the best thing for her. ठीक है सर. Sir, if she is fit for surgery, पापा then I आप will. एक साल से ज्यादा sexually active है कि नहीं जी सर, बिल्कुल. है? और बिल्कुल पूछिए, चाहे वो 87 है, जी सर, ठीक. बिल्कुल पूछिए. Sir, तो आप नहीं if पूछते तो फेल हो जाते. हाँ जी. जी sir. If she is fit for surgery, I will give her the options of vaginal hysterectomy and repair or sacrospinous fixation. हाँ. And if she is not बस. fit for surgery, then colpocholysis. हाँ. नहीं, if sir. she is not fit for major surgery. Okay, sir. Not fit for major surgery. Okay. हाँ. अगर वो फिट नहीं है सर्जरी के लिए, जैसा आपने कहा, if she is जी not sir. fit for surgery, then I will advise her passive treatment. ठीक है सर. सर अगर not fit for surgery में पैसरी और not fit for major surgery, then colpocholysis. हाँ, अब ठीक हो गई आप. ठीक. चलो. Thank you so much, sir. मैंने 2-3 और रखी थी केस से, लेकिन हमने बहुत टाइम ले लिया इन 2 पे. Who is the volunteer next? बाबा आप 60-70 बोलियो, एक तो वॉलंटियर बने ना. सर अस्सलाम वालेकुम. सर मैं वॉलंटियर. आप सर सुन मैं दो. सर मैं फर्स्ट टाइम वॉलंटियर बनी हूँ सर. थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत सारी करेक्शंस की हैं. थैंक यू सो मच. चलो ठीक हो गया. चलो आप Sir, और I'm वॉलंटियर क्या Sundar. करो ना, पता नहीं कितनी. सुंदर आप बोलोगे? जी जी सर. हमारे पास 7-8 मिनट ही हैं. चलो. ठीक है सर. वही XYZ पेशेंट है, एज 52 है और complains of leakage of urine on coughing and sneezing. Leakage of urine on coughing and sneezing. Age 52. ठीक है सर. Sir, first of all, I will introduce myself and take the introduction of the patient and and confirm the information that I already have, including the name of the patient, and as she's 52-year-old and having the cough and sneezing and having the urine leakage on coughing and sneezing. So I will complete her biodata regarding her marital status and married for and for her parity and whether she's postmenopausal or perimenopausal. Then I will ask her regarding the onset of her all symptoms and duration and any association of these urinary leakage, and I will ask her about her dietary intakes and her fluid intake and or caffeine intake, and also ask about any bleeding or any spotting, history of any bleeding or spotting, and any comorbidities like hypertension, diabetes. Then I will move toward the her past medical and surgical and past obstetrical history, in which I थोड़ा सा will. यहीं पे रुक जाइए. सुन, यहीं पे जी सर. ये थोड़ा सा, क्योंकि ये यूरिनरी सिम्टम है, आप यस सर. 2-3 सवाल यूरिन रिलेटेड ऐड कीजिए अपने हिस्ट्री में. ठीक है सर. 2-3 सवाल, क्योंकि यूरिनरी सिम्टम है, इसलिए आप यस पूछिए. सर. हाँ पूछिए फिर. Any history of sir burning micturition or dysuria during painful urination, and in the stream of the urine, whether this she has any hesitancy during the urination, and Any hesitancy, urgency? yes sir, any hesitancy, urgency. ये 3 लफ्ज बोलिए जी. I'll also inquire frequency, urgency and dysuria. ठीक है सर. Frequency, urgency and dysuria. सर अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी कहना है इसमें. इनकॉन्टिनेंस तो वो कह रही है ना कि स्ट्रेस के दौरान होता है. जैसे सर वो कफिंग एंड स्नीजिंग का है, तो अर्ज में भी पूछना है कि अर्ज. हाँ तो वो भी पूछ लीजिए कि स्ट्रेस के अलावा भी कोई इनकॉन्टिनेंस है, जो कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में
वो फिस्टुले भी आ जाते हैं। लेकिन ये 3 अल्फाज आपने बोलने हैं। यस सर। जहाँ पे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट होगा कि एनी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड डिसयूज। सर हम ये भी पूछेंगे कंटिन्यूअस लीकेज है या मतलब इंटरप्टेड है? हाँ बिल्कुल, ये भी बोल लीजिए, उसमें इनकॉन्टिनेंस निकल आती है। वेरी गुड। जो आज आप सब ये ऐड कर ले अपने कि उस हिस्ट्री में मैं ये पूछूंगी, ये 3-4 बातें जरूरी होगी। बाकी ठीक है, जैसा आप कहते हैं कि एनी कोमॉर्बिडिटी, एनी मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री वगैरह, और उसकी पैरस है तो उसकी पैरिटी एंड चाइल्ड बर्थ, ये सारा कुछ पूछ लिया। चलो जी, हो गया। आपने पेरीमेनोपॉजल भी पूछ लिया, ठीक हो गया। प्रोलैप्स की हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा। तो प्रोलैप्स के साथ एसोसिएशन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की ज्यादा कॉमन है। ठीक हो गया। एनी नोक्चुरिया, हिस्ट्री ऑफ नोक्चुरिया, नोक्चुरिया भी आ गया। फिर अब आप चढ़ गई है ना उस पटड़ी पे, यूरिन दी पटड़ी तो उतर आओ। ठीक है सर। आप सारा वक्त उस पे नहीं जाया कर देना। मैंने तभी बोला ये 3-4 लफ्ज बोल के आगे चलो बस। ठीक है सर। Sir, I will also ask about the family history and her socioeconomic status and any history to the history of allergy to any drug, and any history of smoking or any sort of addiction. And then I will move toward the examination of this patient. In the examination, first of all, I will look for the BMI of the patient, and then taking the vitals and general physical examination, in which I would like to see for the jaundice, anemia, and any palpable lymph nodes or thyroid status of the patient. And then I will move toward the local examination, in which I want to do the upper abdominal examination, in which I want to see any mass abdomen. I will look for any mass abdomen or any visceromegaly or any significant finding. Then I will move toward her local perineal examination, in which I will first of all do the inspection, in which I will look for the vulva and vagina, and then I will ask the patient about whether she has emptied her bladder or bladder is full. If the bladder is full, then I will definitely go to demonstrate this stress incontinence, and by aparting the vulva in the dorsal position of the patient and asking the patient to cough, and then I will look for any incontinence. And ये थोड़ा सा हम सब काफी कहते हैं, इसका जरा बदल दीजिए इम्तिहान के लिए। I'll ask her to bear down, लंबा सांस लेके नीचे को जोर लगाइए। यस सर। ये है सही बात। काफी इम्पल्स से जरूरी नहीं, राइट सर। जरूरी नहीं है कि वो प्रेशर इतना रेज हुआ है। हम सब यही कहते हैं खांसी करो बीबी, लेकिन सही इम्तिहान के लिए है कि to increase intra-abdominal pressure, I'll ask her to bear down. वो एग्जामिनर पूछे bear down कैसे होता है, वो आप सबको पता है। एक लंबा सा सांस लो और नीचे को जोर लगाओ। राइट सर। चलो, I'll ask her to bear down. Sir, I will ask her to bear down and look for whether she has incontinence or not. Then I will do her. Suppose that incontinence is demonstrated. फिर क्या करो? So then I will ask the patient to empty her bladder because I need to do the. रुको यही आप सब के लिए। If stress incontinence or during bear down there is incontinence, it is demonstrated, then I'll do either Bonnie's test or tip test और तीसरा मार्शल टेस्ट। तीनों में से कोई एक नाम बोलिए। Yes sir. फिर आप पास होंगे। Right sir. If stress incontinence is demonstrated, that means there is a leakage of urine during bearing down. Then I'll do Bonnie's test. आसान है Bonnie test, ये बोल दी। What is Bonnie's test?
कि 2 उंगलियां डाल के पैरा यूरेथ्रा दरमियान में जहां यूरेथ्रोवेजिकल एंगल है उसको एलिवेट करो. In other words, you will create यूरेथ्रोवेजिकल एंगल. अगर उससे फिर दोबारा वही बेरिंग डाउन फिर पेशाब नहीं आता तो इसका मतलब इट इज ए जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. फिर जो आप ट्रीटमेंट बाद में देने वाले हैं उससे वो ठीक हो जाएगी. टिप टेस्ट, ये जो टिप कॉटन टिप आप इस्तेमाल करते हैं कान के लिए, ये वो स्टेरॉइड लेके वो यूरेथ्रा में डाल देते और उसके बाद पेशेंट को वही बेयर करवाते हैं और उसका देखिए कि वो एंगल चेंज होता है. तो अगर ब्लैडर बेस नीचे आएगी, यूरेथ्रा को नीचे लाएगी तो बाहर जो विजिबल टिप का हिस्सा है वो ऊपर को जाएगा. तो वो ऊपर को जितना जाएगा उतना ही इसका मतलब है कि वो लॉस ऑफ यूरेथ्रोवेजिकल एंगल है. फिर सर उसका इलाज जो आप करने वाले हैं वो ठीक हो जाए. सर ये रिपीट कर तो याद एक ये बोनिस टेस्ट, दूसरा कॉटन टिप टेस्ट. सर कॉटन टिप रिपीट कर दें. कॉटन टिप को तो पता है ना, आप सब कानों के लिए वो करते हो. जी जी सर. छोटी सी स्टिक होती है जिसके टिप पे कॉटन लपेटी होती है. वो स्टेरॉइड लेके if stress incontinence is demonstrated, I'll push that cotton tip into the urethra और उसका पार्ट बाहर होगा, पार्ट अंदर होगा, up to यूरेथ्रोवेजिकल एंगल. इतना पुश करना है. फीमेल यूरेथ्रा होता ही छोटा सा, तो वहां पुश करके फिर पेशेंट को बेयर डाउन करवाना. फिर देखना है कि वो जो बाहर विजिबल है कॉटन टिप, वो स्टिक जो है वो कितनी ऊपर को जाती है. क्योंकि यूरेथ्रोवेजिकल एंगल नीचे आता है तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है और वो नीचे आएगा तो ये विजिबल कॉटन टिप जो स्टिक है वो ऊपर को जाएगी. अगर वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए तो वो इसका मतलब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है. तो आप ये 1-2 दफा करके देख लीजिए वार्ड में जाके किसी पेशेंट. तो सर ये बोनी टेस्ट स्टैंडिंग पोजीशन में करना है या उसी डॉर्सल पोजीशन में? बुक्स में तो स्टैंडिंग लिखा होता है. ना लेटी पोजीशन में. तभी मैंने आपको 3 नाम दिए थे कि ये बोनी टेस्ट कब कैसे करते हैं. वो डिफिकल्ट, फिजिकली डिफिकल्ट टू डू जो आप कह रहे हैं. ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप फौरन कहें कि जी अगर बोनी टेस्ट रिलायबल नहीं है तो आई डू कॉटन टिप टेस्ट, या पहले मैं यही नाम बोल दी. तीसरा आपने कौन सा बताया? तीसरा एक मिनट इम्तिहान में नंगी पेशेंट को, नंगी है ना वो, सलवार उसकी नीचे तक उतरी है बिल्कुल नहीं, तो उसको आप कहे अब तुम नंगे खड़े भी हो जाओ और फिर 2 उंगलियां आप वजाइना में डाले, वो बड़ा इनकन्वीनियंस है पेशेंट एंड फॉर यू. इसलिए बोलिए कि जी बोनी टेस्ट अगर इस तरह से नहीं तो खड़े होके मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी बिकॉज इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द पेशेंट. सो आई विल डू ये कॉटन टिप टेस्ट. सर इसमें बोनीस टेस्ट में ये नहीं होता कि डॉर्सल पोजीशन में आप नेक ऑफ ब्लैडर को लिफ्ट करते हैं और पेशेंट को कहते हैं कफ करे, अगर इनकॉन्टिनेंस नहीं है कफ करने पे तो फिर वो प्रोलैप्स की वजह से है. प्रोलैप्स की वजह से क्या है? फिर मतलब ये अगर नहीं है एलिवेट करने के सब वो मतलब यूरिन आ रहा है. एक मिनट आपको मैं जरा क्लियर कर दूं आमना बीबी, अगर ये बोनी टेस्ट करते कब है? जब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डेमोंस्ट्रेटेड है. सही. फिर आप करते. अगर उस पे नहीं होता तो इसका मतलब जो आप जिसको वो कहते हैं स्टिच, कैली स्टिच है, आई एम सॉरी, कैली स्टिच तब लगाएंगे, उसका फायदा तब होगा अगर बोनी टेस्ट पॉजिटिव है. सही.
कि इसका मतलब वो स्टिच जो यूरोथ्रो वेजिकल एंगल पे जरा हाई अप करके हम लगाते हैं, सर कहते anterior हैं repair प्रोलैप्स का आप एग्जामिनेशन करें तो साथ ही बोनिस टेस्ट भी करके देख लें, वो करना चाहिए या नहीं साथ ही? नहीं, बोनी टेस्ट तब करेंगे ना अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की positive हिस्ट्री है और वरना वो ब्लैडर फुल है। ये दो बातें। ठीक है सर। आपको यूट्रो प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं विद एम्प्टी ब्लैडर, ठीक है सर। Yes, तो sir. उसमें नहीं करेंगे आप बोनी टेस्ट। सर अगर एक बात एग्जामिनर बोलूं? एक मिनट, अगर एग्जामिनर कहे भी इसका बोनी टेस्ट करो, कहो जी मैडम इसका ब्लैडर एम्प्टी है, आई कांट डू दिस, इट हैज टू बी फुल ब्लैडर। ठीक। जी, क्या आप कोई पीछे से बोली थी, क्या क्या पूछने वाली थी? सर जो नाइस गाइडलाइन में ना अभी जो अपडेट हुई थी 2019 में, उन्होंने बाकायदा ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि डोंट डू बोनी क्यू-टिप एंड ओ जी, दीज वो। मैंने भी वो पढ़ा हुआ है, मैंने भी वो पढ़ा हुआ है, लेकिन यस मैं ये समझता हूँ कि ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बाकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है उसका ना कोई जो ये यूरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, सिस्टोमेट्री और वो सारा कोई यूजफुल नहीं है। तो इसलिए आप बेशक ये कह दीजिए, और सेंचुरीज ये लोग करते रहे हैं, अब ठीक। भी तो मतलब आपके, मैंने भी यही पढ़ा हुआ है जो आपने पढ़ा, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि ये कह दीजिए तो हर्ज नहीं। ठीक है सर। सर ये यूरोडायनेमिक्स का क्या रोल होगा अभी जब आप स्ट्रेस नहीं, इनकॉन्टिनेंस? वो किताब में लिखा हुआ है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में इसका कोई रोल नहीं है, एट द मोस्ट आप डू सिस्टोमेट्री, उसका भी कोई रोल नहीं। सर आप वो ये है कि अगर स्ट्रेस ये आप ये इनकॉन्टिनेंस फिक्रा विद बोल मतलब रहे हम हैं, यूरोडायनामिक्स हम है स्ट्रेस तो इनकॉन्टिनेंस को दोबारा से यूरोडायनेमिक्स करके हमें कंफर्म नहीं करना चाहिए कि ये ना ना ना, मतलब बिल्कुल नहीं, बल्कि किताब में उल्ट लिखा हुआ है कि यूरोडायनामिक्स, मैंने बोला ना कि वो जितने भी वो सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं, किसी का स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के डायग्नोसिस में कोई रोल नहीं है। अगर मैक्सिमम स्ट्रेच करें उनमें सिर्फ सिस्टोमेट्री का रोल है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर निकालने के लिए। तो सर अगर प्रोलैप्स विद अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस विद प्रोलैप्स है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि यूरोडायनेमिक्स के लिए भेजें पेशेंट। ओ जी, आप इम्तिहान की तैयारी कीजिए, आप फिर बोलिए आज एम्प्टी था ब्लैडर, मैं ठीक है इसको सर। एग्जामिनेशन के बाद बाहर बिठाऊंगी और ब्लैडर जब भर जाएगा फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करूंगी, ऐसे ही रुको बस ठीक। ठीक है सर। कि क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन करनी है आप। ठीक ठीक। है। तो मेरा ख्याल है 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, मुझे जाना भी है कहीं, आज यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है सर। कौन प्रेजेंट कर रही थी? सुंदस अफरीदी। सुंदस, आप ही अगली दफा गायब ना हो जाए इमरान जी। नहीं नहीं सर, नहीं गायब होती। आपसे ही शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है ये जरा अच्छी तरह कर लें तो इम्पोर्टेंट है, काफी लड़कियां इस पे फेल हो जाती हैं। यस सर। चलो अगली दफा स्ट्रेस Yes, इनकॉन्टिनेंस sir. Thank करेंगे। you, sir. और वैसे तो मैं दो तीन और यूट्रो वेजाइनल हिस्ट्री की अनमैरिड लड़की का यूट्रो वेजाइनल प्रोलैप्स, अगर टाइम हुआ तो वो भी कर लेंगे, जी अनमैरिड सर, लड़की। नेक्स्ट टाइम सर वो भी करते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो, सर ऑल द बेस्ट, एग्जामिनेशन थैंक यू करेंगे। वेरी मच, I have enjoyed talking to you and I love it, honestly I love it. थैंक यू सो So मच सर, सो नाइस ऑफ यू। जज़ाकल्लाह सर। फिर इंशाल्लाह अगले बुधवार। सर थैंक यू, और आपके लिए थैंक यू, और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं सर। आप विदाउट पैसों के, विदाउट पेमेंट जो है हमें इतना टीच कर रहे हैं सर। बाकी लोग तो पैसे देते हैं तब हमें करवाते हैं, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और सर आपका स्पेशल थैंक्स, आपने हमारी हेल्प की है एग्जाम डिले करवाने में। थैंक यू सर। मैं एक बात बताऊं, डॉक्टर जनरली कंफर्टेबल होते हैं, जनरली कंफर्टेबल होते हैं, और पैसे उनके पास इतने से होते हैं कि वो मैनेज कर लेते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। आप अपने गरीब रिश्तेदारों के, गरीब पड़ोसी का अगर इतना सा भी ख्याल करोगे
1 रुपया 2 रुपए 5 रुपए भी दे दोगे इस इरादे से कि उसके मांगे बगैर कि उसकी हेल्प करूंगी, तो अल्लाह मियां आपको जन्नत में जगह देगा। तो रह गया ये बाबा, आजकल FCPS जो पास है उसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह नहीं है, उसका गुजारा कैसे होता है? आप तो अभी ट्रेनी हो, आपको तो लाख भी नहीं मिलता, आप से 10,000 20,000 लेके मेरा क्या बनेगा? अल्लाह मियां ने मुझ पर बहुत करम किया हुआ है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, इसी तरह आपको भी पैसे की जरूरत नहीं। एक लेवल पे गरीबों की, हाजतमंदों की हेल्प कीजिए, अल्लाह मियां आपको जन्नत में जगह देगा। तो मैं आप 60 70 80 जितने भी अटेंड करती हैं, मैं नहीं जानता आपको, मुझे मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुए 25 साल हो गए, और बट जैसा मैं एक्सप्रेस करता हूँ, मुझे तो आपको के साथ बातें करके इतनी खुशी होती है, दिली खुशी होती है। तो कीप दिस ट्रेडिशन ऑन, ये ट्रेडिशन के जारी रखने के बेशुमार तरीके हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियल, इट इज सोशल, इट इज एकेडमिक। ये जो मैं एकेडमिक एक्टिविटी करता हूँ उसका मैं जाती तौर पर ये फायदा समझता हूँ, मुझे आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, तो मेरा अपना नॉलेज जो है अप टू डेट हो जाता है, वरना आई एम इन मिड 80s, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत, तो मेरा इल्म भी पुराना हो जाएगा। तो आपके नाते मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मेरा इल्म तकरीबन अप टू डेट है। तो आपका शुक्रिया कि आप मुझे ये मौका देते हैं। थैंक यू सर, वी आर योर लेगेसी एंड यू आर कनेक्टेड विद अस सर। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि यू आर कीप कनेक्टेड विद अस, कि हमें अपडेट भी कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और मतलब हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपको इस तरह लाइव देख रहे हैं, तो मतलब दिस वाज ऑनर फॉर अस। मैंने तो सिर्फ आपका नाम सुना हुआ था, आई नेवर मीट यू बिफोर, लेकिन जब आपको ये यूट्यूब की वो पैनल वीडियोस पे देखा, फिर मुझे नहीं पता था कि लाइव सेशंस भी लेते हैं, फिर लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि लाइव सेशंस भी लेते हैं आप। चलो, थैंक यू सर, सर, माशाल्लाह आज आप सर लग भी वाल्ट बहुत अच्छे रहे प्रोलैप्स, हैं सर माशाल्लाह। वाल्ट प्रोलैप्स और यंग पेशेंट वाला भी सर कर लेंगे ना? हाँ वो करेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।